We thank God for enabling us to meet again through this Zoom fellowship. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस जूम के माध्यम से हमें मिलने के लिए। We'll turn to Luke Gospel, chapter 17. और हम लूका और सुसमाचार वचन अध्याय 17 खोलेंगे। This chapter has got some valuable lessons for every one of us. और इस अध्याय में हम सभी के लिए बहुमूल्य पाठ हैं। I'll just start reading from verses 1 and 2. और मैं 1 और 2 वचन से पढ़ना चाहूँगा। He said to his disciples, और फिर it उसने is, अपने yeah, I will read first 2 verses, then you can also read it in Hindi. यस ब्रदर। He said to his disciples, it is inevitable that stumbling blocks come, but woe to him through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he would cause one of these little ones to stumble. फिर उसने अपने चेलों से कहा, ये निश्चित है कि वे बातें जो पाप का कारण है आएंगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। Yeah, Jesus says it is inevitable that stumbling blocks come. और उसने कहा कि यह तो अनिश्चित है कि जो ठोकर है वो ना लगे। It is inevitable means it is very difficult to stop somebody causing us to stumble. और उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है कि ऐसा ना हो कि कोई हमें ठोकर ना खिलाए। When you are in a family, there are chances that you get offended. If there are in the church, brothers are there, you may get offended. और आप परिवार में हैं, वहाँ पर आपको बुरा लग सकता है। आप चर्च में हैं, वहाँ पर आपको बुरा लग सकता है। You are traveling in a train, you are traveling in a bus, you are doing business. और आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। Or you may be in your work spot, पार्डन? in your workplace, place और where you work. आपके काम की जगह पर। So everywhere something will happen or somebody will say something which may cause you to stumble. और कहीं पे कुछ तो ऐसा होगा जिससे शायद आपको ठोकर लगेगी। Or it may cause you to get offended. और हो सकता है कि आपको उससे बुरा लगे, ठोकर लगे। So we should not cause stumbling to others. At the same time, we also should not get offended. तो हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है और ना ही हमें भी ठोकर खानी है या बुरा मानना है। So we have to ask God, Lord, give me a heart which is not offended. और हमें प्रभु से मांगना है कि हमें ऐसा हृदय दे जो बुरा ना माने या ठोकर ना खाए। Most of the times we get offended because we are very proud. और बहुत बार हमें बुरा लगता है क्योंकि हम घमंडी हैं। I went to this place, I was not treated properly, so I get offended. मैं उस जगह पर गया और मुझे सही तरीके से मुझे ट्रीट नहीं किया गया, इसलिए मुझे बुरा लगता है। My wife spoke against me or my husband spoke against me and he treated me like this in my in-laws house, so I get offended. और मेरे पति ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया, मेरी पत्नी ने इस तरह का व्यवहार किया, मेरे जो सास ससुर के घर में इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ, इसलिए मुझे बुरा लगता है, मैं ठोकर खाता हूँ। So it was very difficult to stop somebody leading us to get offended. और ये बहुत मुश्किल है इस चीज़ को रोक पाना कि कोई हमें ठोकर दिलाए या हमें उनके द्वारा बुरा लगे। God is very angry against those who are causing stumble और प्रभु उन पे बहुत क्रोधित होता है जो दूसरों को ठोकर खिलाते हैं or those who are causing offense. और जो दूसरों के लिए बुरा लगने का कारण बनते हैं। Especially Jesus is fighting for the weak people and little ones. और खासकर यीशु मसीह जो है, जो कमज़ोर और जो छोटे हैं, उनके लिए वो युद्ध को लड़ता है। As parents, how are we in the home? Are we causing offense and stumbling to our children? और एक माता-पिता के रूप में क्या हमारे बच्चों के लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं? Some cases the children refuse to come to the church. When I inquire, they say we are not interested to come to the church. और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो चर्च में नहीं आना चाहते और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है। Because in spite of my parents coming to the church, they fight at home. क्योंकि मेरे माता-पिता चर्च में तो आते हैं, फिर भी वो घर में लड़ाई करते हैं। So what do they learn in the church? तो फिर वो चर्च में क्या सीखते हैं? I don't want to come to the church और इसलिए मुझे चर्च में नहीं आना। because it has not delivered my parents from murmuring, complaining and fighting.
क्योंकि इसने मेरे माता पिता को जो है लड़ाई झगड़े से या कुड़कुड़ाने से तो छुटकारा नहीं दिया है। Now, who is the cause for such the children to take such decisions? और कौन इसका कारण है कि बच्चे इस तरह का निर्णय ले रहे हैं? It's the parents, और ये माता पिता हैं। or might be the father is not sincere in money matters. और हो सकता है कि जो पिता है वो पैसों के मामलों में वो ईमानदार ना हो। Children are observing it. और जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं They get confusion. और वो जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। What the Bible says like that, but my dad behaves like this. और बाइबल तो कुछ और कहती है और मेरे जो पिता है वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। So first of all, in our home, the parents are to be an example. और सबसे पहले हमारे घर में जो है माता पिता को एक उदाहरण बनना है। We should not do anything which will make our children stumble. और हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारे बच्चों को ठोकर लगे। See here, stumbling block. That's a word used in the NASB version. और एनएसवी जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि ठोकर का जो कारण है, जो ब्लॉक है। So it is like one vehicle is coming. Somebody is coming in the cycle or scooter. You throw a stone or you push a stone on the wheel. और ये इस तरीके से है मानो जैसे कोई जो है स्कूटर से रोड पर आ रहा हो और आप जो है उसके सामने एक बड़ा पत्थर फेंक देते हैं। The vehicle will overturn. और जो है वो जो The person वाहन है वो जो है वो लुढ़क जाता है। the person riding the bike or cycle will fall down, और जो इंसान जो गाड़ी चला रहा है वो गिर जाएगा। and wherever he wanted to go, he is unable to go. There is a delay. और जहाँ कहीं भी उसको जाना है वो नहीं जा पाएगा, उसको देरी हो जाती है। Might be he is going for to write an examination. Now he is injured. He has to be taken to hospital. और हो सकता है कि उसको कोई परीक्षा देने जाना हो पर अब उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। So Jesus is thinking something which is heavier than that block. और यीशु मसीह सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जो इस जो ब्लॉक है उससे भी कुछ भारी है। Yeah, the block may be a wooden piece or a stone piece. और वो जो ब्लॉक है वो जो है वो लकड़ी हो सकता है। So Jesus says, take a millstone which is heavier than the block and tie him on his neck and drown him in the sea. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि एक चक्की का जो पार्ट है उसके गले में लटकाया जाए, उसको समुद्र में डाल दिया जाए। Yeah. See the last verse, last portion, second verse. Because और he causes one of these little ones to stumble. क्योंकि ऐसा लिखा है दूसरे वचन में कि जो कोई इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। So bigger ones, when you cause stumble, they may manage, they may not fall down. और अगर बड़ों को ठोकर लगती है तो हो सकता है कि वो फिर भी ना गिरे। But weak people and the children and little people, they can't manage. पर जो छोटे लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। Yeah. Jesus is telling Peter, who is trying to cause stumble, he's trying to put some block on the way of Jesus. Jesus और is जो going to the cross. और यीशु मसीह जो उस क्रूस की ओर जा रहा है उस समय जो पतरस है वो मानो उसके लिए एक ठोकर का कारण बन रहा है, उससे यीशु मसीह ये वचन कहता है। We read that in Matthew chapter 16. और मत्ती 16 में हम पढ़ते हैं। Jesus says, you are causing an offense, you are causing stumbling. और उससे यीशु मसीह कहते हैं कि तू जो है एक ठोकर का कारण है। See, small vehicles will be overturned when you put a stone or a wooden piece. It will be overturned and injury will be very high. और जो छोटे वाहन होते हैं, अगर हम कोई रास्ते पर अगर हम कोई पत्थर फेंक दें तो वो बहुत आसानी से जो है वो गिर जाएंगे, पलट जाएंगे। We'll turn to Numbers chapter 12. और हम जो है गिनती 12 अध्याय खोलेंगे। Book of Numbers chapter 12. गिनती 12 अध्याय। We read an incident here. और वहाँ पर हम एक घटना के विषय में पढ़ते हैं। Moses, such a big leader, और जो मूसा है इतना बड़ा अगुवा है वो, or we can say such a huge responsibility he is having. और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। And God gave his own brother and sister to help him in this work. और उसने जो है प्रभु ने जो है उसको उसकी एक बहन को दिया है जो उसकी मदद कर सके। His sister is Miriam and his brother is Aaron. और उसकी बहन जो मिरियम है और उसका भाई जो हारून है। Moses was the youngest. और मूसा जो था वो सबसे छोटा था। Now Moses married an Ethiopian lady, or the word of God says Cushite woman.
और मूसा ने जो एक कूशी स्त्री से विवाह किया था, Yeah, maybe somebody from Ethiopia. pardon? Ethiopian woman. और उस शायद कोई इथियोपिया से कोई वो स्त्री थी, And Miriam and Aaron are trying to find out some fault in Moses. और मिरियम जो और हारून जो है वो कोई मूसा में कोई गलती निकालने की कोशिश करते हैं, They could not find any fault in Moses, और वो उसमें कोई भी गलती नहीं निकाल पाए, but they were trying to find fault with the person whom he has married. पर वो जिससे उसने विवाह किया था वह उसमें दोष निकालते हैं। We'll read the first verse. और हम पहला वचन पढ़ेंगे। Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman. And they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us as well? And the Lord heard it. मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मिरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बातें यहोवा ने सुनी। See, they were asking Moses, who are you? Do you think you are a great man? Will God only speak to you? और वह मूसा से कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? और क्या परमेश्वर सिर्फ तुमसे ही बातें करता है? We are not insignificant people. God will speak to us also. और हम कोई साधारण लोग नहीं है, परमेश्वर हमसे भी बात करता है। The very fact that they have that attitude, it proves that God will not speak to them. और जो उनका स्वभाव था वही इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर उनसे बात नहीं करता। They were speaking against Moses. और वो मूसा के खिलाफ बातें कर रहे थे। But read the second verse, last part. और पर हम इसका जो दूसरा वचन पढ़ते हैं उसका आखिरी भाग, And the Lord heard it. उसमें लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने बातों को सुना। It doesn't say Moses heard it. इसमें ऐसा नहीं लिखा मूसा ने सुना। Might be Moses would have looked somewhere else. और हो सकता है मूसा कहीं और देखने लगा हो। Somebody coming to Moses for help, he is listening to them. और मूसा के पास कोई मदद के लिए आया हो और मूसा उनको सुन रहा हो। Because Moses was so involved in guiding the people. क्योंकि मूसा जो था लोगों का मार्गदर्शन करने में बहुत ही व्यस्त रहता था। But the verse says that God heard it. वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको सुना। Same thing, when somebody speaks against you, before you hear, God hears it. और वैसे ही जब कोई आपके खिलाफ बातें करता है तो आप उसको सुने, उससे पहले परमेश्वर उसको सुनता है। Or I can say like this, allow God to hear it. You hear it later. और मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि होने दीजिए, पहले परमेश्वर उसको सुने, आप उसे बाद में सुने। There's a verse in James which says, be quick to hear and slow to speak. और याकूब में लिखा है कि हम बोलने में धीमे हों और सुनने में तत्पर हों। But here Moses was not quick to hear. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूसा जो था वो सुनने में जो है तत्पर नहीं था। When somebody rebukes us, somebody gives us advice, somebody gives us counsel, we should be quick to hear. जब कोई हमें डांटता है या कोई हमें सलाह देता है तो हमें सुनने में बहुत तत्पर होना है। But when somebody speaks against us, bad about us, we should not be quick to hear, we should be slow to hear. पर जब कोई हमारे बारे में बुरी बात कहे तो हमें जो है सुनने में धीमा होना है। In Corinthians, Paul says, in doing good, be matured people, but in doing bad, evil things, be like small children. और जो पौलुस है वो कुरिन्थियों में कहता है कि अच्छी बातें, भली बातें करने में जो है हमें सयाना होना है, पर बुरी बातें करने में हमें बालकों के समान हो जाना है। So let us try to follow the example of Moses. और आइए हम मूसा का अनुसरण करें इस बात में। When Miriam and Aaron spoke against Moses, the Bible does not say Moses listened to it. और जो मिरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ बातें की तो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि मूसा ने उसको सुना, But it says the Lord heard it. पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको सुना। Next time when somebody scolds you, और अगली बार जब कोई आपको डांटता है, somebody wantedly argues and accuses you, और वो जानबूझ के आप पर दोष लगाता है, आपके You साथ should- बहस करता है, you should pray in your heart, Lord, you hear it, Lord. I don't want to hear it. और आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप उसे सुने, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। I'm not going to repay him, Lord. You repay him, Lord. प्रभु मैं कोई बदला नहीं दूंगा, आप ही बदला दीजिए। 1 Timothy chapter 3:15, Paul says, the coppersmith Alexander did much harm to me. और पहला तिमोथियो 3, 3, yeah.
I'll show that verse. 1 Timothy 3:15. 3:15। I think I think 2 Timothy. Yeah, I'll come to that verse afterwards. ओके। Yeah. So it says the Alexander, the coppersmith, has done much harm to me. और उसमें लिखा है कि जो अलेक्जेंडर है उसने जो है मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुराई की है। 2 Timothy 4:14. 2 Timothy 4:14. 2 सिकंदर Timothy. ठेठरी ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसके कामों के अनुसार उसको बदला देगा। Yeah, Alexander the coppersmith did much harm. The Lord will repay him according to his deeds. सिकंदर ठेठरी ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसके कामों के अनुसार उसको बदला देगा। So he said, when whoever does something harm to me, whoever speaks something bad about me, I leave it to the Lord. और ये वचन कहता है कि जिसने मेरे साथ बहुत बुराई की है, मैं उन सारी बातों को प्रभु के ऊपर छोड़ देता हूँ। Jesus also lived a life like that. और प्रभु यीशु ने भी इसी तरह का जीवन जिया। We'll read 1 Peter chapter 2 and verse 21. और हम पहला First पत्र Pe- 1 Peter, चैप्टर 2 अध्याय yeah, 2 and verse 22 and 23. 2 अध्याय का 22 वचन और 23। Who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। Suppose, imagine there's a device like this, और मान के सोचिए कि कोई ऐसा यंत्र है इस तरह का, and you keep it like this, और आप उसको इस तरीके से रखते हैं, and whoever speaks, the sound wave comes and that it goes to above. It is not entering to your ear. और कोई भी कुछ बोलता है तो वो जो आवाज़ है वो वहाँ तक जाएगी, वो ऊपर जाएगी, बट आपके कानों तक नहीं पहुँचेगी। Any bad thing which people speak, any accusing things, it comes here and it goes out. It goes directly above to God. और कोई भी ऐसी बुरी बात बोलता है, दोष लगाता है, वो यहाँ से टकरा के उस सीधी ऊपर ही जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। Yeah, we can say Jesus was having something like that. Not और actual device, but I am imagining. और हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के पास भी वास्तविक में नहीं, पर मानो कि ऐसा ही कोई यंत्र था। People kept on reviling him. और लोग जो थे वो उससे दोष लगाते रहते थे उस पर, People kept on scolding him. और वो उसको डांटते थे, उससे बुराई करते थे। The Pharisees, the Jewish leaders, the Annas, Caiaphas, chief priests, kept on scolding him. और जो जो फरीसी थे, जो कायफा था, वो सारे लोग जो है उसको गाली देते थे, बुराई करते थे। He directed everything to God, who judges correctly. और पर उसने सारी बातों को उस पर परमेश्वर के हाथों में दे दिया, जो सच्चा न्याय है। What a blessed life we have. और कितनी आशीषित जीवन ये हमारे पास है। All the scoldings or despising words, bad words coming, I have a spiritual mechanism where it is turned towards heaven. और जितना भी हमें हमारे बारे पर दोष लगाया जाता है या बुरा कहा जाता है, जो भी बातें हैं, हम उसे जो है ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर उन्हें दे देते हैं। That's why in Numbers 12 chapter 2, 12 and verse 2, we see Lord heard it. इसीलिए गिनती 12:2 में हमने देखा कि लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने उन बातों को सुना। Yeah, Moses, though he heard it, he just transferred it to God. Lord, you take care. और मूसा ने भले ही उन बातों को सुना, पर उसने उन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। Now what happened? फिर क्या हुआ? God who heard it wanted to repay. और जो परमेश्वर जिसने इन बातों को सुना, वो उसका बदला लेता है। It is the pride in Miriam and pride in Aaron makes them to speak like that. और जो मरियम और हारून में जो ये घमंड था, उसके कारण उन्होंने इस तरीके से बात की। Whenever you accuse an elder, whenever you accuse a responsible brother, you may have to check yourself whether you are proud. और जब आप किसी अगुवे पर या किसी एल्डर पर जब दोष लगाते हैं, तो आपको अपने स्वभाव को, अपने आप को जांचना है। Then you may ask, brother, this is the fact. Should I not tell my elder about the fact?
और फिर आप कहेंगे भाई ये तो सत्य है, क्या मुझे अपने अगुवे के बारे में इस तरीके से, प्राचीन के बारे में क्या ये सत्य नहीं बोलना चाहिए? The elder or the responsible brother does not know two sides of the coin. और जो प्राचीन है उनको बात के दोनों पहलू नहीं पता है। Yeah, sometimes situations may come where you have to speak. हाँ, ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जहाँ आपको बोलना पड़ेगा। But in Ephesians chapter 4, we read, speak truth in love. पर इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि हमें जो है सत्य जो है वो प्रेम में होकर बोलना है। First, make sure that you love that brother and then you tell. आप पहले निश्चिंत करें कि आप उस भाई से प्रेम करते हैं, उसके बाद ही आप बोलिए। If you find that there is no love for him, only jealousy is there, better not to speak. अगर आप देखते हैं कि आपके भीतर केवल ईर्ष्या है और प्रेम नहीं है, तो भला है कि आप चुप रहें और कुछ ना बोलें। So, what do we find? The entire Israel, 6 lakh people, only brothers were 6 lakh, gents, male, and might be more than 10 lakh people would have been there. They were all going. Now the journey is stopped for 7 days. और हम देखते हैं कि 6 लाख तो केवल पुरुष है और स्त्री बच्चों को मिलाकर 10 लाख होंगे, और हम देखते हैं कि वो जो यात्रा है वो 7 दिन के लिए रुक जाती है। You can imagine a huge train having hundreds of coaches, और thousands of coaches. आप कल्पना करके देख सकते हैं कि एक बहुत ही लंबी एक ट्रेन है जिसमें बहुत सारे कोचेस हैं, Suddenly it stops. और अचानक वो रुक जाती है। Not for few hours, for 7 days it और stops. कुछ घंटों के लिए नहीं, पर 7 दिनों के लिए रुक जाती है। What will happen? और क्या होता है? Everybody will start questioning why it is stopping for 7 days. Usually it will stop 1 day, 2 days, then we move, we move, we move. But why now 7 days it stopped? और हर कोई पूछने लगता है कि भाई ये क्यों रुक गई है? वैसे तो ये 1 या 2 दिन के लिए रुकते हैं, पर अब तो ये 7 दिन के लिए रुकी है, क्यों ऐसा है? From the first coach to the last coach, there was a question among the people. और पहले कोच से लेके अंतिम कोच तक सभी लोग ये यही सवाल पूछ रहे हैं। Then somebody would have said, it appears Miriam got leprosy. और फिर किसी ने कहा होगा ऐसा लगता है कि मिरियम जो है उसको कोढ़ हो गया है। People were shocked to hear that. और लोग जो अचंभित हो जाते हैं बात को सुनकर। Such a prophetess, such a godly lady, why she got leprosy? और जो भविष्यवाणी करने वाली इतनी ईश्वरीय स्त्री, वो कैसे उसको कोढ़ हो गया? Then the next news comes. और फिर दूसरी समाचार मिलता है, He spoke against Moses. और उसने मूसा के विरोध में बात कही। You may ask why God did not punish Aaron. और आप पूछेंगे कि परमेश्वर ने हारून को क्यों नहीं दंड दिया? Might be Aaron did not initiate it. और हो सकता है कि हारून ने उसकी शुरुआत ना की हो, Miriam was using Aaron to screw. और मिरियम जो है वो हारून का इस्तेमाल कर रही थी ये बात बोलने के लिए। Sometimes it happens in a family. और कई बार परिवार में ऐसा होता है, The husband is having good spirit, और पति के पास जो है एक अच्छी आत्मा है, but the wife keeps on screwing, screwing, screwing. Go and ask, go and ask, go and ask. और बार बार जो पत्नी है वो पति पर दबाव डालती कि जाओ और पूछो, जाओ और पूछो। The poor husband, without discernment, he goes and talks against the और responsible people. और जो बेचारा पति है वो बिना किसी परख के जाता है और पूछता है इस बात को। Husbands, we have to be like men. और प्रिय पतियों, हमें एक पुरुष के समान होना है। Yeah, when your wife says something, you have to find out whether it is from God or from the devil. जब आपकी पत्नी कुछ कहे तो आपको ये पता लगाना है कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। All ideas, all suggestions given by wife may not be correct. सारे जो सुझाव पत्नी के द्वारा और दिए जाते हैं वो सारे सही नहीं होते हैं। So God didn't punish Aaron, but God punished Miriam. इसलिए परमेश्वर हारून को नहीं पर मिरियम को दंड देता है। Yeah, the very sad thing, what is और happening. और जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुखद था। So God wanted to expose, say, God will speak, God would have spoken to Miriam about this pride for many, many days. और परमेश्वर जो है वो उस बात को उजागर करता है, और हो सकता है और परमेश्वर ने बहुत बार काफ़ी दिनों से मरियम से जो उसका प्राइड था उसके बारे में उससे बात की होगी। Yeah, Moses is a man of God. I speak to him face to face. Don't speak against him. और मूसा जो है वो परमेश्वर का जन है और मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ। And then what happens? God is calling the three of them to the tent. और उसके बाद परमेश्वर जो उन तीनों को छावनी के बाहर बुलाता है, Moses also goes along with Miriam and Aaron. और मूसा जो है वो मरियम और हारून के साथ जाता है। Then God says, Moses, you stand out. I will call only Aaron and Miriam.
और परमेश्वर कहता है कि मूसा तुम बाहर खड़े रहो, मैं केवल मिरियम को और हारून को अंदर बुलाता हूँ। Then God is asking them, were you not afraid to speak against Moses, my servant? और फिर वो परमेश्वर उससे पूछता है कि तुझे मेरे दास के विरोध में बोलने से डर नहीं लगा? And God gives a very good certificate about Moses. और जो परमेश्वर जो है मूसा के बारे में एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट देता है। I speak to my children by through dreams and visions, और मेरे बच्चों से जो है मैं स्वप्न के द्वारा बात करता हूँ, but not with Moses like that. Moses, I speak face to face. पर मूसा के साथ इस तरीके से नहीं, पर उससे तो मैं आमने सामने बात करता हूँ। He is faithful in all my house. और सारे घरानों में वो जो है विश्वास योग्य है। God gives a certificate about Moses. और परमेश्वर जो है मूसा के विषय में ये प्रमाण पत्र देता है। How powerful is this certificate? और ये प्रमाण पत्र कितना अधिक ताकतवर है। Again, Holy Spirit says the same thing in Hebrews chapter 3. Moses is faithful in all the house of God. और फिर से पवित्र आत्मा जो इब्रानियों 3 में ये इस बात को कहता है कि मूसा जो है सारे घराने में विश्वास योग्य था। My dear brothers and sisters, don't you want this certificate? और मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप ये प्रमाण पत्र नहीं चाहते? Being a faithful brother in the church of God. और परमेश्वर की कलीसिया में एक विश्वास योग्य भाई। Faithful in all the house means faithful in money matters, faithful in speaking to the people, faithful in looks, faithful in hearing, so many things. और सारे घराने में विश्वास योग्य मतलब पैसों के मामले में, बोलने के बारे में, देखने के बारे में, सुनने के बारे में, हर एक बात में विश्वास योग्य। Yeah, God will tell whatever responsibility you give to this brother, he will be faithful. और परमेश्वर कहेगा कि इस भाई को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें वो विश्वास योग्य होगा। There's a second certificate God is giving और एक और दूसरा प्रमाण पत्र परमेश्वर देता है, that we read in the 3rd verse. और वो हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं। Now the man Moses was very humble, more than any man who was in the face of the earth. मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। See, great temptation, great difficulty, he got a great certificate. और जितनी बड़ी परीक्षा होती है, जितना बड़ा मुश्किल होती है, उतना ही बड़ा प्रमाण पत्र मिलता है। If Miriam had not spoken against Moses, we would not have seen this certificate about Moses. अगर मिरियम ने मूसा के विषय में अगर ये नहीं कही होती तो हम ये जो प्रमाण पत्र है उसके विषय में हम नहीं पढ़ते। So, my dear brothers and sisters, when somebody keeps on speaking against you, against your family, let us learn a lesson from Moses. और अगर भाई बहनों कोई आपके बारे में बार बार कोई और आपके परिवार के बारे में बुरी बातें बोलता है, तो आइए हम मूसा के की घटना से हम सीखें। We should get a certificate. He is the meekest man. और वो इस प्रमाण पत्र को पाता है कि वो सबसे अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति है। May not be in the world, at least to some extent we should get a certificate. Yeah, he is a meek among all the people in the church. और हो सकता है मे बी पूरे संसार में नहीं, पर कलीसिया में सभी लोगों में सबसे अधिक नम्र। Now somebody is asking why Miriam should be suffering 7 days. I think Moses is asking. और फिर मूसा इस तरीके से पूछता है कि क्यों मिरियम को 7 दिन तक इस तरीके से ये सहना पड़ेगा। Yeah, 13th verse. Moses cried out to the Lord, Lord, please heal her. I pray, immediately heal her. और 13 वचन में मूसा इस तरीके से प्रार्थना करते कि परमेश्वर कृपा कर, उसको चंगा कर। So far, God has answered Moses' prayers immediately. और अभी तक परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर दिया है। But here God says, I will not answer your prayer. पर यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। Not because you don't have faith. इसलिए नहीं कि तुझ में विश्वास नहीं है, She doesn't have the humility. पर उसमें मिरियम में वो जो नम्रता नहीं है। Yeah, for that it will take 7 days. और इसके लिए 7 दिन लगेंगे। 7 days of humiliation, 7 days of public disgrace. और 7 दिन का जो है वो लोगों द्वारा तुच्छ जाना जाना, बाहर सबको ये बात जान पड़ना। It should have broken the heart of Miriam. और इस बात ने मिरियम के हृदय को तोड़ दिया होगा। 14th verse we read. और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, If her father had but spit in her face, would she not bear her shame for 7 days? यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती। So to be received again, she has to stay 7 days outside the camp. इसलिए उसे 7 दिन तक उस छावनी के बाहर रहना पड़ेगा।
Yeah. Now, a related verse is there in Deuteronomy chapter 25 and verse 9. व्यवस्था विवरण 25 के 9 में लिखा है। Deuteronomy chapter 25. ये व्यवस्था Yeah. विवरण 25 का 9। See, I will just tell the background. और मैं इसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा। Yeah, there are many brothers living in a family, और बहुत सारे भाई हैं जो उस परिवार में रहते हैं, and the first brother died, और पहला भाई मर जाता है, and the wife becomes a widow. और जो पत्नी है वो विधवा हो जाती है। And God says one of the brothers should marry that wife. और परमेश्वर कहता है कि उनमें से एक भाई को उस स्त्री से विधवा से विवाह करना है। And with that marriage, if she gets a child, that child should have the name of the father. और अगर उस विवाह से बच्चा होता है तो उस बच्चे का नाम उस पिता के नाम पर होगा, So that the name is not blotted out from Israel. ताकि वो जो उस पिता का नाम है वो इज़राइल से मिटाया ना जाए। But if the brother says, I am not interested to marry, पर अगर भाई कहे कि मुझे विवाह करने में रुचि नहीं है, what should we do? What should be done? तब क्या किया जाएगा? We read in 9th verse, the wife shall come to him in the sight of the elders, pull his sandal off, and spit in his face. तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे। Thus it is done to the man who does not build up his brother's house. और कहे जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार व्यवहार किया जाएगा। Yeah, some of our brothers are trying very hard to build a house for God. That is the church, body of Christ. और कुछ जो भाई हैं वो बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं मसीह की कलीसिया को बनाने के लिए। Instead of helping him, if you are doing some work against him, और अगर उन्हें मदद करने के बजाय आप उसके विरोध में काम कर रहे हैं, or against building up of the body, और या फिर मसीह की कलीसिया को बनाने के विरोध में काम कर रहे हैं, what does the word of God say? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Where will we spit? On what things will we spit? तो हम कहाँ पर थूकेंगे, किधर थूकेंगे? Something which is useless, we spit. और जो कुछ काम का नहीं है उसी के ऊपर हम थूकते हैं। In the same way, when this sister spits on one of the brother's face, this wife, she says he is useless. और इसी तरह से जब ये जो पत्नी है जब उस भाई के ऊपर थूकती है तो वो कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। You are eating some food और आप कुछ खाना खा रहे हैं that is not getting digested. और वो जो है पचन नहीं हो रहा है, It stays in your stomach for 3 days. और वो जो है आपके पेट में 3 दिन तक रहता है। And what will you do? और आप क्या करेंगे? Your body will act in such a way that you spit it out, vomit it out. और आपकी जो शरीर है इस तरीके से काम करेगा कि आप उसको उल्टी कर देंगे। Because that particular food is not contributing to the building up of your body by getting digested. और वो जो खाना है वो पचन होने के द्वारा आपके शरीर में कुछ अपना योगदान नहीं दे रहा है। And Jesus says in the book of Revelation, और यीशु मसीह जो है प्रकाशित वाक्य में कहता है either be cold or be hot. कि या तो तुम ठंडे बनो या फिर तुम गर्म बनो। If you are lukewarm, I will spit you out. अगर तुम गुनगुने हो तो मैं तुम्हें उगल दूंगा। So Miriam heart became lukewarm in loving Moses and God. और जो मरियम है उसका हृदय जो है मूसा और परमेश्वर को प्रेम करने के लिए गुनगुना हो गया था। So getting leprosy and going out of the camp is a sign that God is spitting her out. और वो जो कोढ़ पाना और छावनी के बाहर जाना वो इस तरह का चिन्ह था जैसे परमेश्वर जो है उसको उगल रहा है या थूक रहा है। Now we come back to Luke chapter 70. और अब जो है हम लूका 17 पर आते हैं। Anyone who causes stumbling to young people or little people in the church, they are working against the body of Christ. और जो कोई जो छोटे हैं या जो कमज़ोर हैं उनको ठोकर दिलाते हैं वो जो मसीह की देह है उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। See, spitting, vomiting, putting down under the ocean, all are same meaning. और जो है थूकना है, उगलना है या फिर जो समुद्र में डाल देना है, सबका एक ही अर्थ है। There are some extreme examples God is quoting. और ये जो है कुछ बहुत ही एक्सट्रीम जो उदाहरण है वो प्रभु ने दिए हैं। See, physically Jesus is not going to vomit anybody.
और जो शारीरिक रूप से प्रभु किसी को उगलने नहीं जा रहा है। What Jesus is telling is that he is the head of the church and body is the actual church. We are the body of Christ and they'll be removed from the body of Christ. और प्रभु क्या कह रहा है कि प्रभु जो है वो शरीर का वो जो सिर है, और ये जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वहाँ से जो है उसको वो उगल देगा, प्रभु निकाल देगा। Yeah, people continuously creating problem, irritating and causing stumbling. They are put away from the church. और ऐसे जो लोग हैं जो बार-बार कलीसिया में जो है में प्रॉब्लम लेकर आते हैं, उन लोगों को उस मसीह के देह से बाहर निकाल दिया जाएगा। Because he is not interested in building the house of his brother. क्योंकि उनको जो है मसीह की कलीसिया या अपने भाई-बहनों को बनाने में, निर्माण करने में कोई रुचि नहीं है। Now we'll come back to Luke chapter 17. और हम लूका 17 में लौटेंगे Luke chapter 17 and verses 3 onwards. और तीसरे वचन से आगे हम पढ़ेंगे। I'll just read to you. Be on your guard. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times a day and returns to you 7 times saying, I repent, forgive him. सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। See, these two verses say about the power of repentance. और ये जो दोनों वचन हैं वो पश्चाताप की जो सामर्थ्य उसके विषय में बात करते हैं। You have done harm 7 times, और आपने जो है 7 बार नुकसान पहुंचाया है, but if you repent, पर the अगर आप other person is forgiving you. पश्चाताप करते हैं और दूसरा वो आपको माफ करता है। So the first two verses we can say unoffending heart. और जो पहला जो 2 वचन है वो जो है बुरा ना मानने वाला हृदय के विषय में है। We don't cause offense to others. हम जो है दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते। Also we can say unoffended heart. और हम ये भी कह सकते हैं कि बुरा ना मानने वाला हमारा ऐसा हृदय। When somebody speaks bad about it, I don't get offended. अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है तो मैं ठोकर नहीं खाता, मुझे बुरा नहीं लगता है। Now these two verses talks about a forgiving heart. और ये जो बाकी के 3 और 4 वचन है वो क्षमा करने वाले हृदय के बारे में बात करते हैं। If somebody is not repenting, he is not realizing that he has done a wrong thing. और अगर कोई पश्चाताप नहीं करता है तो उसे महसूस नहीं हो रहा है कि उसने कोई गलत चीज की है। If he is not able to repent, we have a responsibility like to do rebuking. और अगर वो पश्चाताप नहीं करता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे डांटें। Because this rebuking may make him sensitive and he will think about it and he will come to repentance. और डांटने के द्वारा हो सकता है कि वो अपने समझ में आए और वो पश्चाताप करे। The purpose of God giving us the word is told in 2 Timothy chapter 3 and verse 16. और प्रभु का वचन देने का जो दूसरा तीमुथियुस 3:16 में जो दिया गया है। Yeah, what are the purposes? और उसका क्या पर्पस है? For teaching, for training, for rebuke, for correction. और ब्रदर कैन यू रिपीट, सॉरी। Teaching, और उपदेश के विषय में, training in righteousness, और धार्मिकता में समझाने के विषय में, rebuking, और डांटने के विषय में, corrections. और सुधार के विषय में। So you see 50% positive and 50% negative. और आप देखते हैं कि जो 50% है वो सकारात्मक है और 50% जो है वो नकारात्मक है। Negative means it is positive only, but for us it looks negative. और जो नकारात्मक लगता है वो शायद हमें नकारात्मक लगता है, पर वो हमारे लिए सकारात्मक और सही Yeah. ही। Nobody enjoys rebuking, getting rebuked. और कोई भी जो डांटा जाना है उसका आनंद नहीं उठाता है। Nobody enjoys getting corrected. और किसी को भी जो है करेक्शन दिया जाना या सुधार दिया जाना अच्छा नहीं लगता है। Yeah, in Hebrews 12th chapter, Holy Spirit says, और इब्रानियों 12 अध्याय में वचन कहता है, yeah, the Lord, if he loves us, he's a good father and he disciplines us. और जो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और वह जो है हमें सुधारता है, डिसिप्लिन करता है। When you are disciplined, don't get fainted. और जब आपको सुधारा जाता है तब आप कमजोर ना पड़े। If you are not disciplined, you are illegitimate children. और अगर आपको ताड़ना नहीं दी जाती है तो आप जो है इलिजिमेट बच्चे हैं। Yeah, 10th verse it says, when you are disciplined, short time, you may feel bad, but it is for our good.
और जब आप तुम्हारी 11th verse. All यस, discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful. पर वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। But it produces peace and righteousness. पर वह जो है वो धार्मिकता का फल उत्पन्न करती है। So the rebuke the responsible brothers or elder responsible sisters give to the younger people, it will immediately you will not feel joyful. और इसलिए जो ज़िम्मेदार भाई-बहन हैं जब आपको डाँटते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा You may be sad for some time. और आप थोड़े समय के लिए दुखी हो सकते हैं। The Bible says it's okay to be sad for some time, और बाइबल कहती है कि ये ठीक है थोड़े समय के लिए दुखी होना, but that sadness and the grief should lead to repentance. पर वो जो जो दुःख है वो जो है पश्चाताप को उत्पन्न करना चाहिए। Sometimes people sad and it does not lead them to repentance. और कई बार लोग जो दुखी होते हैं पर वो पश्चाताप की ओर नहीं लेके जाता है। That sadness is called the worldly grief. और वो जो दुखी होना है उसको जो है जो सांसारिक दुःख कहा जाता है। It causes destruction. और वो जो है डिस्ट्रक्शन को लेकर आता है। But if you repent, it is godly grief which causes salvation. पर जो अगर आप शोक करते हैं वो जो है वो पश्चाताप को लेके आता है और वो उद्धार लेकर आता है। So there are two kinds of griefs when we are rebuked. और जब हमें डांटा जाता है तब दो प्रकार का शोक होता है। One is worldly sorrow, another one is godly sorrow. और एक है सांसारिक शोक और दूसरा है ईश्वरीय शोक। Godly sorrow leads us to repentance, worldly sorrow leads us to backsliding. और जो ईश्वरीय शोक है वो पश्चाताप की ओर लेके जाता है और जो सांसारिक शोक है वो दुनिया की तरफ या विनाश की ओर लेके जाता है। I don't know whether some children are hearing my words, but my children, if anybody, young people are hearing, when you are rebuked by your parents or the elders in the church, let it be godly grief which leads to repentance. और मैं नहीं जानता कि अगर कोई जवान भाई या बहन सुन रहे हैं, पर अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपके जो प्राचीन हैं या कोई बड़े भाई या बहन जब आपको डांटते हैं तो वो जो है आप में एक ईश्वरीय शोक को लेकर आने पाए। What is godly grief? What is worldly grief? और ये जो ईश्वरीय शोक है या फिर जो दुनियावी शोक है वो क्या है? Godly sorrow is, oh, I have caused pain to my God. That is godly sorrow. और ईश्वरीय शोक क्या है कि मैंने जो है मेरे मेरे परमेश्वर को दुख पहुंचाया है। Worldly sorrow is, oh, they have caused me pain. I am a great man. They have humiliated me in front of everybody. That is worldly sorrow. और दुनिया का शोक क्या है कि देखो उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है, मुझे ठोकर खिलाया और लोगों के सामने इस तरीके से मुझे नीचा दिखाया है। Why do elders or parents rebuke us? और जो प्राचीन है या हमारे माता पिता है क्यों हमको डांटते हैं? Because the word of God says, Jesus himself says, if क्योंकि you परमेश्वर sin, का वचन कहता है if you sin, they will rebuke you. कि अगर तुम पाप करोगे तो वो तुम्हें डांटेंगे And if you repent, पर you will be forgiven. और अगर तुम पश्चाताप करोगे तो तुम्हें माफ किया जाएगा। So I have spoken about rebuking. और मैंने जो है वह डांटने के विषय में सुधार के विषय में बात की है About godly sorrow. और ईश्वरीय शोक के बारे में। Now I want to talk about forgiveness. और अब मैं क्षमा करने के विषय में बात करना चाहता How हूँ to have a forgiving heart. और कैसे वो क्षमा करने वाला हृदय हो हमारे We'll पास। turn to 2 Corinthians और हम दूसरा कुरिन्थियों की ओर मुड़ेंगे। chapter 2. दूसरा अध्याय 2 Corinthians chapter 2. दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय। Yeah. Here Paul says about forgiving. और यहाँ पर जो है पौलुस जो है क्षमा के विषय में बात करता है 6th verse says about punishment. और जो छठा अध्याय है वो दंड के विषय में बात करता है That means discipline or rebuke. और जो है सुधार किया जाना और डांटा जाना। And 7th verse says, if he repents, you should rather forgive and comfort him. और 7वें वचन में लिखा है कि उसका अपराध क्षमा करो उसे शांति दो। And 10th verse he says, I forgave him for your sake in the presence of Christ. और वो कहता है कि मैं उससे भी क्षमा करता हूँ मसीह की उपस्थिति में है तुम्हारे लिए। There are many people who forgive not in the presence of Christ. और बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा करते हैं बट मसीह की उपस्थिति में नहीं। Oh, you have done this wrong thing. और वो कहते हैं कि तुमने ये मेरे साथ बुरा किया है At least hereafter don't do that. और कम से कम अब आगे से ऐसा मत करना, I forgive you. मैं तुम्हें माफ करता हूँ। What to do? You are my son and I am forgiving you.
और क्या I करूँ have to तुम forgive you. मैं क्या करूँ, तुम तो मेरे बेटे हो, मुझे तो माफ़ करना पड़ेगा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। What to do? I belong to this church. I have to do that. और क्या करूँ, मैं तो इस चर्च से हूँ, मुझे तो माफ़ करना ही पड़ेगा। Such kind of forgiveness, do you think it is forgiveness in the presence of Christ? और आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो क्षमा है वो मसीह की उपस्थिति में की गई या मसीह की जगह की गई क्षमा है? No, no, it is a human forgiveness, और carnal forgiveness. और ये जो है शारीरिक और मानवीय क्षमा है। But forgiving in the presence of Christ has got two things. और जो मसीह की जगह होकर या मसीह की उपस्थिति में होकर जो क्षमा है उसमें 2 बातें हैं। When you forgive somebody, it should be followed by two things. और जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो उसके बाद 2 बातें होती हैं। Number one is mentioned in the 7th verse. और जो एक चीज़ है वो 7वें वचन में लिखी है, Comfort him. उसे शांति दो। After forgiving, just pat him on the back. If I were in your place, I also would have done that. But don't worry. You forgive. Words of comfort. You have to और give. जो उसको माफ़ करने के बाद उसके कंधे पर इस तरीके से राहत रखते हुए कहो कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे करता, उसको वो सांत्वना दो। And 8th verse says, reaffirm your love for him. और 8वें वचन में लिखा है कि अपने प्रेम का प्रमाण दो। So when you forgive somebody next time, और अगली बार जब आप किसी को क्षमा करें, make sure that you are forgiving in the presence of Christ like Paul did. और ये निश्चित करें कि जैसे पौलुस ने मसीह की उपस्थिति में होकर माफ़ किया, आप भी ऐसे ही करें। Somebody has spoken against you और किसी ने आपके विरोध में कुछ कहा है or done something against you, और आपके खिलाफ कुछ किया है and you are rebuking him, और आप उसको डांट रहे हैं, or not always rebuking, sometimes you are pointing out, और हो सकता है कभी शायद डांटे नहीं बट कुछ बात तो आप उनको दिखा रहे हैं and he repents, और वो पश्चाताप करते हैं, then you forgive. तो आप उन्हें क्षमा करें। And while forgiving, you comfort him. और उनको क्षमा करते हुए आप उनको सांत्वना और शांति भी दो। See, how did the prodigal son's father forgive the son? और जो उड़ाऊ पुत्र का पिता है उसने उसको किस तरीके से क्षमा किया? Did he put him in the servant quarters and says, okay, I am forgiving you, please realize your sin? Did he do like that? और क्या उसने उसे नौकरों के घर में रखा और कहा कि देखो मैं तुम्हें माफ करता हूँ और अभी आगे से ऐसा मत करना? No, no, no. He gave him a new set of dress and a ring on his finger, new shoes, and he offered him very best food. That is the comfort and love. और पर उसके पिता ने जो उसको नए कपड़े दिए, उसके हाथों में अंगूठी पहनाई, उसको अच्छा खाना दिया, ये है सांत्वना देना। The comfort and love you show puts him in a higher responsible position. Oh, I have to live a better life now. और जो आप उसको सांत्वना देते हैं और अपने प्रेम का जो प्रमाण देते हैं, वो उसको एक ऊँचे स्तर पर ले जाता है कि अब जो है मुझे बेहतर जीवन जीना है। So in our churches, in our families, when somebody forgives in the presence of Christ, what a great blessing it will bring. और हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में जब हम कोई मसीह की उपस्थिति में होकर किसी को क्षमा करता है, तो ये बहुत बड़ी आशीष की बात है। Forgiveness followed by comfort and love. और जो क्षमा है वह सांत्वना या शांति और प्रेम के इसके साथ-साथ चलती है। It is hugging. It is like hugging with two hands. और ये समान है मानो 2 हाथों के साथ हम किसी को गले लगा रहे हैं। One hand is love, another hand is for comfort. और एक हाथ जो है वो प्रेम है और दूसरा हाथ जो सांत्वना और शांति देना है। What a great comfort you would receive after you forgive him. और किसी को माफ करने के बाद कितना अधिक आप सांत्वना को पाएंगे। He will love you, and in his eyes, your respect will go up. और वो आपको प्रेम करेगा को और उसकी आंखों में आपके लिए जो इज्जत है वो बहुत ऊंची हो जाएगी। Then Paul says two things. What are the things going to follow? और पौलुस जो है 2 बातों को कहता है जो उसके बाद होंगी। Number 11, verse 11. और 11वें वचन में 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 11 वचन। If you forgive somebody in the presence of Christ with the comfort and love, अगर Satan आप will not take advantage. और अगर आप किसी को मसीह की उपस्थिति में होकर क्षमा करते हो तो शैतान का आप पर दाव नहीं चलेगा। Otherwise, Satan will scheme something. That's why Paul says, we are not ignorant of his scheme. और इसलिए पौलुस कहता है कि हम जो है नहीं तो क्या होगा, शैतान अपने हमारे विरोध में युक्तियां करेगा। और इसलिए पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। I'll mention 4 schemes of the devil. और मैं शैतान की 4 युक्तियों को बताना चाहूँगा। First thing, forgive him, but don't love him, don't comfort him. और पहला है वो कहेगा कि उसको माफ़ तो करो पर उसको शांति मत दो, सांत्वना मत दो और प्रेम मत करो। Second, forgive him without the presence of Christ. और उसको माफ़ करो बिना मसीह की उपस्थिति के।
After forgiving, go and speak ill to others. Though this fellow has done like that, I have forgiven him. This fellow has done like that, I have forgiven him. और उसको क्षमा करने के बाद दूसरों के पास जाकर उसकी बुराई करो कि देखो उसने तो ऐसा मेरे साथ किया और मैंने उसको माफ़ कर दिया। You're going around telling about to others. और यहाँ वहाँ जाके दूसरों को उसके बारे में बोलना। Then after fourth thing is after forgiving him, still having bitterness and anger and hatred against him. और चौथी बात, उसको माफ़ करने के बावजूद भी उसके विरोध में जो है वो नफ़रत होना और वो जलन होना हो। Yeah, think of the people whom you have forgiven. और उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आपने माफ़ किया है। Do you still have a bitterness against them? क्या उनके विरोध में आपके पास अभी भी कड़वाहट है? Do you still have some kind of anger and hatred against him? क्या अभी भी आपके हृदय में वो गुस्सा और वो नफ़रत उनके खिलाफ है? Then you are giving room for the devil to carry out his schemes. और अब फिर आप जो है शैतान को वो रास्ता दे रहे हो, दाव दे रहे हो कि वो आपके खिलाफ युक्तियाँ करे। If you understand these 4 schemes of the devil and if you are careful, then 14th verse Paul says, और अगर आप शैतान की युक्तियों को समझ जाते हैं तो फिर 14वें वचन में पौलुस इस तरीके से कहता है, But thanks be to God who always causes us to triumph in Christ and manifest through us the sweet aroma of the knowledge of him in every place. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if our home is like this home, और अगर हमारा घर इस तरीके का घर है where you forgive and show love and comfort and you forgive them in the presence of Christ, जहाँ पर आप लोगों को माफ़ करते हैं और उनको सांत्वना और प्रेम देते हैं और मसीह की उपस्थिति में आप उन्हें माफ़ करते हैं, there will be a kind of fragrance in your home. और आपके घर में एक सुगंध होगी। The fragrance God would smell. और वो जो सुगंध है वो मसीह को उसको सूंघेगा। God would be pleased to dwell in your home. और परमेश्वर बहुत ही खुश होगा आपके घर में रहने के लिए। If there's a church like that, there will be fragrance going up. और अगर इस तरह की चर्च होगी, कलीसिया होगी, तो एक सुगंध उस कलीसिया से निकलेगी। God would be much pleased to be in that church. और परमेश्वर बहुत ही खुश होगा उस चर्च में उपस्थित रहने के लिए। And to forgive in the presence of Christ is to remember how much Christ has forgiven me. और मसीह की उपस्थिति में माफ़ करना मतलब ये याद करना कि कितना अधिक परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है। So today from Luke chapter 17, first 4 verses, we have learnt some lessons. और आज हमने लूका 17 के पहले 4 वचनों से कुछ सीखा है। Unoffending heart and और forgiving heart. और बुरा नहीं मानने वाला हृदय और क्षमा करने वाला हृदय। May God bless every one of us और through these प्रभु हम verses. और प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। We'll close our eyes and pray to God. और हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे For a minute, we'll think about it. और हम कुछ क्षण उसके बारे में सोचेंगे। Our dear Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। We want to build our brothers' houses, Lord. प्रभु, हम आपके उस कलीसिया घर को बनाना चाहते हैं। We want to build the church, Lord. प्रभु, हम कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं। We want to build the fellowship, Lord. प्रभु, हम उस संगति का निर्माण करना चाहते हैं। For which give us, Lord, an unoffending heart. और उसके लिए हमें बुरा ना मारने वाला हृदय दीजिए प्रभु। Yeah, little ones we don't want to offend in any way, Lord. और छोटों को हम किसी भी तरीके से ठोकर नहीं दिलाना चाहते। And we want to forgive everyone, Lord. और हम हर एक को माफ़ करना चाहते हैं। And with forgiveness, we want to love them and comfort them. और माफ़ करने के साथ हम उनको सांत्वना देना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं। To every husband, give this grace, Lord, to और forgive his wife. और हर एक पति को ये अनुग्रह दे अपनी पत्नी को माफ़ करने का। In the same way, let every wife forgives her husband like this, O Father. और इसी तरीके से हर एक पत्नी अपने पति को इस तरीके से माफ़ करे। Let our homes be homes of sweet smelling aroma. और हमारे घर जो है वो सुगंध देने वाला घर बनने पाए। In Jesus' name we pray. मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.